کھمم ضلع میں BRS کے اجلاس کے موقع پر پارٹی کارکنوں کے جوش و خروش اور پٹاخے جلانے کے دوران پٹاخے گیس سلنڈر پر گر پڑے، جس کے نتیجے میں یہ سلنڈر پھٹ پڑا اور ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ 8 افراد کو جھلسی ہوئی حالت میں دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی افراتفری مچ گئی۔ رکن اسمبلی راملو نائک نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سلنڈر پھٹ پڑنے کی آواز کے ساتھ ہی کارکن وہاں پہنچ گئے۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے۔ اس واقعے پر بھی وزیر تارک راما راؤ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کھمم میں پیش آئے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کھمم سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پواڑہ اجے کمار اور رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ سے اس واقعے کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ مہلوک کارکنوں کے خاندانوں کی ممکنہ طور پر مدد کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اس واقعے میں جھلس جانے والے افراد کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ بی جے پی نے کل شب کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے 190 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ کئی ارکان اسمبلی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے اور پہلی فہرست میں کانگریس سے شامل ہونے والے کئی امیدوار شامل ہیں۔ بسوراج بومئی نے کہا کہ دوسری فہرست جلد جاری کی جائے گی۔ 190 امیدواروں میں 52 نئے چہرے شامل ہیں۔ بی جے پی کے آر اشوک گنگاپورہ سے کانگریس کے چہرے ڈی کے شیو کمار سے مقابلہ کریں گے۔ وی سومنا کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کا سامنا کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بی جے پی آئندہ سال کے عام انتخابات میں 300 سے زائد لوک سبھا نشستیں حاصل کرے گی اور مسلسل تیسری میعاد کے ساتھ اقتدار پر واپسی کرے گی۔ وزیر اعظم مودی ایک مرتبہ پھر قیادت کریں گے۔ ڈبروگڑھ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے یقین ظاہر کیا کہ زعفرانی جماعت شمال مشرقی ریاست میں لوک سبھا کی 14 میں سے 12 سیٹیں جیتے گی۔ انہوں نے ڈبروگڑھ میں بالائی آسام زونل بی جے پی آفس کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں مسلسل تیسری میعاد حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم بنیں گے۔ کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمال مشرق کسی وقت کانگریس کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن راہل گاندھی کی یاترا کے باوجود پارٹی حالیہ اسمبلی انتخابات میں اچھا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ورنگل کے کمشنر پولیس رنگناتھ نے کہا ہے کہ 10ویں جماعت کے پیپر لیک معاملے کی سازش رچی گئی تھی۔ اس سلسلے میں تمام شواہد اور فون کا ڈاٹا پولیس کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بی جے پی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے اس معاملے کے ملزم ہیں، اسی لیے ان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سیاسی نقطہ نظر سے اس کیس کو نہ دیکھنے کی خواہش کی۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے سرسلہ میں ایگریکلچر کالج اینڈ ہاسٹل کی عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ونود کمار، ضلع پرجا پریشد کی صدر نشین ارونا راگھوا ریڈی، تلنگانہ کلچرل سارتھی کے صدر نشین ایس بالا کشن، MLA رمیش بابو اور دوسرے موجود تھے۔ رنگا ریڈی ضلع ابراہیم پٹنم حلقے کے MLA منچی ریڈی کشن ریڈی کی سالگرہ کی تقریب بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ حلقے کے کیمپ آفس میں انہوں نے ارکان خاندان کے ساتھ مل کر تقریب میں شرکت کی اور کیک کاٹا۔ اس موقع پر تمام نے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 10ویں جماعت کے پرچے کے لیک ہونے کے معاملے کے ملزم صحافی پرشانت کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ان کو SSC پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں بی جے پی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے کے ساتھ ملزم بنایا گیا تھا اور ان کو ریمانڈ کر دیا گیا تھا۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے اس معاملے میں اپنے رول کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جان بوجھ کر ان کے خلاف کیس درج کیا ہے۔
वैजाग स्टील प्लांट की खरीदारी के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत तैयार है। सिंगारेड्डी के CMD की हिदायत पर 3 डायरेक्टर्स ने विशाखा स्टील प्लांट का मुआयना किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर स्टील प्लांट को हासिल करने के सिलसिले में तज्जिया किया जा रहा है। विशाखा स्टील प्लांट बोर्ड रूम में इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग डायरेक्टर्स के साथ सिंगारेड्डी के जिम्मेदारों का ये इजलास हुआ। सिंगारेड्डी के 3 डायरेक्टर्स और 2 GMs ने इस इजलास में शिरकत की। DSC 98 की काउंसलिंग रोकने का मुतालबा करते हुए बाज़ उम्मीदवार मंगलगिरी में एक सेल फोन टावर पर चढ़ गए। पुलिवेंद्रा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार रमेश और नीलूर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार श्रीनिवास ने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरिट के ऑर्डर के सिलसिले में SC और BC उम्मीदवारों से नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने कहा कि 25 साल तवील इंतज़ार के बाद YS जगन हुकूमत ने 4534 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों का तखर्रुर किया है। ये तखर्रुर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किया गया है। हन्नमकुंडे में सदर्न ट्राइब्स की ब्रांच के दफ्तर का वजीर दयाकर राव और चीफ विप विनय भास्कर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने कहा कि मुल्क भर में 5 दहाइयों से सयाहत और मेहमान नवाजी के शुबे में ये ट्राइब्स बेहतर खिदमात अंजाम दे रहा है और मुख्तलिफ मुकामात पर भी खिदमात अंजाम दी जा रही है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज सुबह के अवलीन सातों में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 फौजी जवान हलाक हो गए। इसकी तस्दीक करते हुए फौजी अहदेदारों ने कहा कि फौजी स्टेशन के अंदर सुबह तकरीबन 4:35 पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया, जिसमें 4 जवान हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि फौरी कार्रवाई करते हुए फ़ौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। किसी भी शख्स को इलाके में अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और JDU के सदर ललन सिंह के साथ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात साल 2024 के आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन के इत्तेहाद से मुताल्लिक होने वाली बातों के दरमियान हुई है। आपको बता दें कि खड़गे ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हम ख्याल जमातों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए कई अपोजिशन के रहनुमाओं से बात की है। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस सदर मुलाकात कर चुके हैं। वो आने वाले हफ्तों में अपोजिशन के आला रहनुमाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम का 1 EME सेंटर की जानिब से इनेकाद अमल में आया है। 1 EME सेंटर एक अहम इदारा है जो कि EME में दाखिला लेने वालों को बुनियादी फौजी तरबियत और तकनीकी तरबियत फराहम करता है। EME सेंटर की जानिब से अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम मुनाकिद करने का मकसद ITI या पेशा वाराना कोर्सेज के साथ साथ 10वीं या फिर 12वीं तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में अग्निपथ स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने से मुताल्लिक शऊर बीदार करना था। कमांडेंट ब्रिगेडियर सुरेश ने बताया है कि फौज में भर्ती के लिए ITI और डिप्लोमा के तलबा के लिए खुसूसी मौक़े मैसर होंगे। अग्निवीर स्कीम के लिए भर्तियों में तकनीकी और पेशा वाराना महारत रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। दोनों तेलुगु रियासतों के नौजवानों से उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने जेड बिल्डर्स की जानिब से मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। शहर के इलाके टोली चौकी अलहसनात कॉलोनी में जेड बिल्डर्स ने दावत इफ्तार का नज़्म किया था। कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तार किया। नानन नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूज़्ज़मान सिद्दीकी, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। जिले मेडचल मलकाजगिरी के आनंद बाग समेत कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आए दिन वो बीमार हो रहे हैं।
वकीलों ने बताया कि बंडा चेरुवू को पिछले साल से साफ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है और करीबी इलाके जैसे आरटीसी कॉलोनी, मौला अली, शफी नगर, भरत नगर, सादुल्ला नगर, ईस्ट आनंद बाग व दीगर में लोग मच्छरों की बहुतायत से परेशान हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वकीलों को शिकायत है कि जीएचएमसी ओहदेदारों से कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी उन्होंने साफ सफाई के कोई इक़दाम नहीं किए। एक तरफ गंदगी तो दूसरी तरफ मच्छरों की बहुतायत और ताफुन से लोग परेशान हैं, ताहम इसी इलाके में रहने पर मजबूर है। वकीलों ने वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव, रुकन असम्बली मल्काजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव, मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद, जीएचएमसी कमिश्नर से इस जानिब तवज्जो देने और तालाब की साफ सफाई करवाने की मांग की है। वकीलों ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने और मिशन काकतिया स्कीम के तहत इस तालाब की तज़यीन व आराइश करवाने की भी दरख्वास्त की है। महबूबनगर जिले के पेदापल्ली में ऑटो में सवार एक खातून पर वहशियाना हमला करते हुए उसे लूट लेने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मदुरू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली कृष्णम्मा अपने भाइयों के घर पेदापल्ली गांव जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। कुछ देर बाद दीगर मुसाफिर भी ऑटो में सवार हुए। बताया गया है कि जैसे ही ऑटो पेदापल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके पहुंचा, ऑटो में सवार होने वाले मुसाफिरीन ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और फिर कृष्णम्मा को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। उसका गला काट दिया गया। बाद अज़ां हमलावर सोने के जेवरात छीन कर फरार हो गए। ड्राइवर ने, जो खुद भी उनके हमले में जख्मी हुआ था, खातून को जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। मुतासिरा खातून को अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में किंग कोबरा ने हलचल मचा दी। मुकामी अफराद खौफ और दहशत में मुब्तला देखे गए। श्रीकाकुलम में हाथियों के बाद अब किंग कोबरा घूमते नजर आ रहे हैं। कंचली मंडल कुमारी नो गांव में मुकामी लोगों ने खेतों में काम करने के दौरान किंग कोबरा देखा। रिहायशी इलाकों में भी इसे घूमता देखा गया। लोगों ने फौरी इतला सांप पकड़ने वाले बालराजू को दी, जिसने वहां पहुंचकर सांप को पकड़ लिया और महकमे जंगलात के अफसरान को इतला दी। अफसरान की हिदायत पर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन अवाम में खौफ बरकरार है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप होने के बावजूद फितरतन डरपोक होता है और इंसानों से इसका सामना होने की सूरत में वो फरार होने को तरजीह देता है। गाँव वालों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कांचली मंडल के जलंधरकोट और बोगापेनी इलाकों में भी कसरत से ये सांप देखा जा रहा है और किंग कोबरा कसरत से नजर आने पर इलाके के लोगों में खौफ और हरास पाया जाता है। हुकाम ने मुकामी लोगों को चौकस रहने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। अठारह महीने के अरहान साई गोर शेट्टी ने ब्रश का इस्तेमाल किए बगैर 43 तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 50 फ्लूइड आर्ट पेंटिंग्स बनाकर सबसे कम उम्र आर्टिस्ट होने का एजाज हासिल कर लिया है। अरहान सिर्फ 18 महीने का है। उसने नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया है, जिसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की जानिब से उसे चाइल्ड प्रोडिजी करार दिया गया है। अलामाजी वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अरहान को प्रोडिजी ऑफ फ्लूइड आर्ट्स का खिताब दिया है। सुपर किड्स तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 18 महीने के अरहान को यंगेस्ट आर्ट प्रोडिजी का खिताब दिया है। अरहान ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से पहले ही 4 बैनुल अक़वामी और 2 कौमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। बालानगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम और कुकटपोली पुलिस ने हैशिश ऑयल फरोख्त करने वाले बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से जारी कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एसओटी बालानगर और कुकटपोली पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए रियासत उड़ीसा के 2 गांजा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि हैश ऑयल फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पुलिस ने 5 मिलीलीटर पर मुश्तमिल 220 हैश ऑयल की बोतलें और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 7,830 नए केसेस दर्ज किए गए हैं।
صحت محکمے نے بتایا کہ معاملات میں اضافے کے ساتھ ساتھ شرح انفیکشن بھی بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ روز شرح انفیکشن 2.8% ریکارڈ کی گئی تھی، آج یہ بڑھ کر 3.65% ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں آج کورونا کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ منگل کو جہاں 5,676 کیسز درج کیے گئے تھے، وہیں چہارشنبے کو 7,830 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ دہلی، مہاراشٹر اور اتر پردیش میں بھی کورونا کے معاملات میں اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 40,215 ہو گئی ہے۔ ایک دن میں 16 اموات ہوئی ہیں اور اموات کی کل تعداد 5,31,016 ہو گئی ہے۔ صحت محکمے کے مطابق شرح اموات 1.19% اور شرح صحت یابی 98.7% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک دن میں 2,14,242 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکہ اندازی مہم کے چلتے 24 گھنٹوں میں 441 افراد نے کورونا ٹیکہ لگوایا ہے اور اب تک کل 220,66,24,326 افراد نے کورونا ٹیکہ لگوایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔